Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Humanities Adda. I'm Amisha Gautam and I have done my graduation from Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi, and I have done my graduation in history honors basically. And currently I'm pursuing masters in history from Lady Shri Ram College, University of Delhi itself, and I'm also preparing for UPSC Civil Services examination. So we were doing challenges of nation building, and this is going to be lecture fourth. And we will be discussing about integration of princely states in this lecture. Okay, so now let's move on to the lecture. We will be discussing the lecture now. Here is the topic: integration of princely states. Now let us begin. British India was divided into what were called the British Indian provinces and the princely states. So what we have as the British Indian provinces and the princely states, you can look at the map here. Here you have the map. You can see the yellow portion. These are the British Indian provinces. Here you can say the Bengal province, Bihar province, Central provinces, Bombay, Madras province. Then you have the Sindh, Punjab states, Rampur. So these areas were directly under the control of the Britishers. But apart from that, the blue area, these areas are the areas of princely states वाले area है ये. यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपके लोकल रूलर्स जो थे दे वर रूलिंग बट दे वर नॉट रूलिंग एज टू दे वर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट. ऐसा भी नहीं था कि ये फुल अथॉरिटी थी इनके पास, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट थे. दे वर एक्चुअली आप बोल सकते हो कि रूलिंग बिकॉज दे वर अलाउड टू रूल बाय द ब्रिटिशर्स. इन्होंने ब्रिटिशर्स के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया था and that is why they were being allowed to rule by the britishers. एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को, ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को ये लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था. एंड दीज ब्रिटिशर्स they adopted different policies to gain the control of different princely states. इनकी policies की अगर हम बात करें, you can talk about the doctrine of lapse, you can talk about the subsidiary alliance, but we will not go into that because we are dealing here political science की बात कर रहे हैं हम. We are not talking about the modern history, but also you can read about the what was doctrine of lapse, what was subsidiary alliance. Always you can read about it to enhance your knowledge. So you will see that the British Indian provinces were directly under the control of the British government. हमने ये देख लिया कि ये directly under control थे. Now on the other hand, several large and small states ruled by princes called the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. So they were enjoying some form of control over the internal affairs. कुछ form of control जो था, कुछ control उनको अपने internal affairs पे मिला हुआ था, है ना. एक्सटर्नल अफेयर्स पे आप देखोगे, जैसे अगर सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो व्हेन दे एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, उसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी आर्मी को एक प्रिंसली स्टेट में स्टेशन कर देते थे. देन दे सेड द प्रिंसली स्टेट दैट नाउ सिंस आवर आर्मी इज प्रेजेंट इन योर टेरिटरी एंड आवर आर्मी इज प्रोटेक्टिंग योर टेरिटरी, नाउ यू आर सपोज टू पे अस. आपको हमें फी पे करनी पड़ेगी सिंस आवर आर्मी इज हियर, and you are now supposed to ask us every time when you are going to deal with any other power. अगर आप किसी दूसरे प्रिंसली स्टेट के साथ वॉर के लिए जा रहे हो तो आपको हमसे पूछना होगा. अलायंस फॉर्म कर रहे हो तो आपको हमसे पूछना होगा. दैट मीन्स कि एक्सटर्नल मैटर पे आपको हमसे कंसल्ट करना होगा. और आप किसी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ या फिर उनकी हेल्प या फिर उनके कांटेक्ट में नहीं आ सकते. दैट मीन्स इफ द फ्रेंच, अगर वहां पे फ्रेंच है तो उनके साथ इनका कांटेक्ट नहीं रहेगा. डच है, पोर्चुगीज है, तो ये इस तरीके से इनका ये सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम चलता था. नाउ ये जो सिस्टम है एक तरीके से ये आप देख रहे हो कि दिस वाज कॉल्ड द पैरामाउंसी और द स्यूजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. ये आप देख रहे हो कि ये एक तरीके से सुप्रीमेसी आपको यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की देखने के लिए मिल रही है, पैरामाउंसी देखने के लिए मिल रही है. Princely states covered one third of the land area of the British Indian Empire, and 1 out of 4 Indians lived under princely states. So you can, princely rule. So here you can see the importance of the princely states in the British Indian Empire.
कि काफी ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है, और पॉपुलेशन वाइज भी आप देख रहे हो कि 4 इंडियंस में से एक जो इंडियन है वो इस टाइम पे प्रिंसली रूल के अंडर में था. नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम देन? आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग वी विल लुक एट द प्रॉब्लम. एक्चुअली में अब प्रॉब्लम क्या थी? Now, just before independence, it was announced by the British that the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. तो जैसे इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया, वी सॉ, हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट माउंटबेटन प्लान्स एंड कैसे माउंटबेटन के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने, और माउंटबेटन के प्लान में ही हमें पार्टीशन का भी प्लान देखने के लिए मिला था. एंड इट वाज एक्सेप्टेड बिकॉज आप देखते हो कि उसमें प्रिंसली स्टेट्स के लिए कोई ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि दे विल बी फ्री, दे विल बी इंडिपेंडेंट. उनके लिए दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे, आइदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान. So this was there in the you can say the Mountbatten plan, and this was also there in the Indian Independence Act of 1947 because it was completely based on the June जो आपका जून वाला Mountbatten plan था उसके ऊपर. बट अल्टीमेटली देन यू विल सी कि ये इन चीजों को इस प्लान को बाद में ध्यान में नहीं रखते प्रिंसली स्टेट्स, एंड देन दे विल स्टार्ट डिक्लेयरिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. ये चीज को ध्यान में नहीं रखा गया. इनफैक्ट योर बुक, आपकी बुक में भी ये दिया गया है कि वो उनके पास तीसरा ऑप्शन भी रहता है इंडिपेंडेंट रहने का. बट अकॉर्डिंग टू द रिटन थिंग्स, अकॉर्डिंग टू द आपके एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, सो दे डिड नॉट हैड दिस ऑप्शन टू रिमेन इंडिपेंडेंट. और इसी के लिए तो फिर माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने. इफ यू गो एंड रीड दी हायर बुक्स, सो यू विल फाइंड दैट मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स में आप देखोगे तो ये एक रीजन था कि since they will not have an option to remain independent, that is why Congress accepted this plan कि इंडिया की कम से कम पार्टीशन के बाद ये यूनिटी तो मेंटेन रहेगी. तो इंडिपेंडेंस से पहले ही ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था कि जब उनका रूल जो है ओवर इंडिया खत्म हो जाएगा तो ये पैरामाउंटसी जो है ब्रिटिश क्राउन की प्रिंसली स्टेट्स के जो ऊपर थी वो भी लैप्स हो जाएगी एंड के साथ. दैट मीन्स कि दे विल नाउ दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल दैट. उनका जो एक्सटर्नल मैटर्स है या फिर जो भी कंसल्टेशन वो करते थे प्रिंसली स्टेट से, किसी भी तरह के कंट्रोल नहीं रहेगा उनके ऊपर, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर इनका, ब्रिटिशर्स का. This meant that all these states, as many as 565 in all, so these were the, you know, आप देख सकते हो 565 ऑलमोस्ट इतने नंबर्स में आपको प्रिंसली स्टेट्स दिखेंगे उस टाइम पे. सो दीज वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट. तो लीगली एक तरीके से आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन India or Pakistan or remained independent if they so wished. Here it is written, but actually may, even if you want, I can show you where it is written that Mountbatten plan ke provisions kya hai. Even if you go and search on net, it is clearly given that they did not had the option, they did not have the option to remain independent. They were given only two choices, whether either to join India or to Pakistan. तो ये किस तरीके से इंडिपेंडेंट वाला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वो आइडिया है यहाँ पे, आई डू नॉट नो. बट एक्चुअली में देन यू विल सी कि द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट केयर अबाउट वॉट एवर इज रिटन इन दैट. दे एक्टेड ऑन देयर ओन. तो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी तो वो अपनी विश के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे. दिस डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल. सो ये जो डिसीजन था कि क्या उनको करना है, इंडिया में ज्वाइन करना है या पाकिस्तान में, वो भी आप देखोगे कि लोगों के ऊपर नहीं था, ये प्रिंसली रूलर्स के ऊपर छोड़ दिया गया. मतलब प्रिंसली रूलर्स ने डिसाइड किया था कि व्हाट दे विल बी डूइंग. Now, this was a very serious problem and could threaten the very existence of United India. तो ये काफी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज अदरवाइज अगर सारे जो 565 जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, they will start deciding to remain independent, then what आप देखोगे कि इंडिया की जो यूनिटी है वही थ्रेटन हो जाएगी एक तरीके से. Now the problem started very soon. बहुत ही जल्दी आप देखते हो कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही अनाउंसमेंट होगी. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on independence. ट्रावनाकोर के जो रूलर हैं उनका पहले यही आ जाएगा डिसीजन कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमें इंडिपेंडेंट होना है. देन निजाम ऑफ हैदराबाद, यू विल सी,
he made a similar announcement the next day. So next day, Nizam of Hyderabad, he will also be saying the same thing, that we also want the independence. The rulers like, uh, uh, just wait a second. Okay, so now rulers like the Nawab of Bhopal were averse to joining the Constituent Assembly. So you see that the Constituent Assembly was also there, that was formed in 1946. So rulers of, this Nawab of Bhopal, they were also, not joining. They did not want to join the Constituent Assembly. They were against it. And this response of the rulers of the princely states, ये जो response आया princely states का, rulers का, ये एक तरीके से it meant that after independence, that there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. तो बहुत ज्यादा chances आपके देखने के लिए लग रहे थे कि इंडिया जो है further divide हो जाएगा small countries में, छोटी छोटी countries में. एंड आप बोल सकते हो कि balkanization वाली जो situation है वो हो सकती थी. Now the prospects of democracy for people in these states also looked bleak. You can say the national leaders at that time, they wanted democracy. They wanted to establish democracy for the people. But do you think that these small princely states wanted the same? If they wanted independence, they wanted their authority to remain the same. तो उस केस में डेमोक्रेसी ये स्टैब्लिश करवाएंगे, ये वोटिंग करवाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे. ये अपनी जो आपकी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, सॉरी, जो अथॉरिटेटिव इनका रूल है, वही ये रखना चाहेंगे. तो इनका जो किंगशिप वाला सिस्टम है, जो मोनार्की सिस्टम है, वही इनका रहेगा. तो दैट मीन्स देयर वाज नो स्पेस फॉर डेमोक्रेसी इन दीज प्रिंसली स्टेट्स. तो ये जो चांसेस है डेमोक्रेसी का, प्रोस्पेक्ट्स जो थे डेमोक्रेसी के, इन प्रिंसली स्टेट्स में आपको ब्लीक दिखेंगे अगर ये ऐसा होने वाला होता, अगर मतलब ऐसा हो जाता. Now, this was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. तो ये काफी strange situation हो गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस. मतलब आप देख सकते हो इंडिया के लिए बेसिकली, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस जो था वो एम एक तरीके से उसको एम किया गया था. उसका एम ही था कि इंडिया को यूनाइट किया जाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए इसको आपको इंडिया को इंडिया के लिए बेसिकली इंडिपेंडेंस सॉर्ट की जा रही थी. एंड डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इतने टाइम से स्ट्रगल किया जा रहा था. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their populations. तो आप देखो कि non-democratic manners में ये सारे जो आपके rulers हैं, गवर्नमेंट जो है वो रन की जा रही थी इन प्रिंसली स्टेट्स में. कोई आपका वोटिंग सिस्टम एंड ऑल नहीं आपको मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं लोगों को, वो नहीं मिलेंगे. जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, राइट टू वोट हो गया, दीज थिंग्स विल नॉट बी गिवन टू द पीपल. सो दे वर नॉट विलिंग टू गिव द पीपल दीज काइंड ऑफ राइट्स. नाउ वी विल कम टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच. व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करेगी? नाउ हियर वी हैव द इंटरिम गवर्नमेंट. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि दो इंटरिम गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे आपके दो इंटरिम गवर्नमेंट को हम रेफर करेंगे. एक आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती है 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 तक. ये वाली जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली गवर्नमेंट है. एंड देन यू हैव अनदर इंटरिम गवर्नमेंट, और यू कैन से द प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो आपके बाद में बनती है आफ्टर 1947 टिल द फर्स्ट इलेक्शन जो आपके होते हैं उस टाइम तक जो एग्जिस्ट करती है बेसिकली. टिल दी यू कैन से जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आता है एंड जो आपके फर्स्ट फॉर्मल इलेक्शंस होते हैं उस टाइम तक. सो जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है, ये वाली जो इंटरिम गवर्नमेंट को हम रेफर कर रहे हैं, दिस इज दी 1946 से लेके 1947. ये it took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sizes. तो ये interim government ने एक firm stance लिया against the possible division के against थे ये लोग. इन्होंने एकदम अपनी voice उठाई कि नहीं, we do not want this kind of division. On the other hand, Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the state should be free to adopt any course they liked. अब यहाँ पे आप देखो कि मुस्लिम लीग इज स्टिल हियर बिकॉज अभी तक इंडिपेंडेंस और पार्टीशन नहीं हुआ है. अदरवाइज इफ दिस गवर्नमेंट वुड हैव बीन द गवर्नमेंट आफ्टर 1947 वाली,
तो आपको यहाँ मुस्लिम लीग का कोई भी एक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। दिस मीन्स कि 1947 से पहले की बात हो रही है। 1946 का टाइम पीरियड है जब अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम पीरियड की बात है। मुस्लिम लीग यहाँ पे कह रही है कि नहीं, जो स्टेट्स चाहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स, दे शुड बी फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट। सरदार पटेल ऑन द अदर हैंड, ही विल बी, अब वी विल टॉक अबाउट आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ। सरदार पटेल, आप देखोगे कि इंडिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, एंड ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत ही होम मिनिस्टर बनते हैं सरदार पटेल, एंड he played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into Indian Union. तो इनका काफी बड़ा एक तरीके से आप देखो तो कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने नेगोशिएट करने के लिए रूलर्स के साथ, रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ फॉर्मली नेगोशिएट किया, डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट किया। बट इन्होंने आप देखो कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को, मोस्ट ऑफ देम को इंडियन यूनियन में एक तरीके से ले आए, उनको ज्वाइन करवा दिया। इट मे लुक इजी नाउ, अभी आपको इजी लग रहा है, बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। It was a very complicated task which required skillful persuasion. So you have to persuade the other people to join the Indian Union. Okay, so for instance, there were 26 small states in today's Odisha. Odisha के जो अभी आप प्रेजेंट उड़ीसा है उसमें आप देख रहे हो 26 स्मॉल स्टेट्स हुआ करते थे। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात आप देखो 14 बिग स्टेट्स हुआ करते थे, 119 small states and numerous other different administration. So this was the region case of the Gujarat region. Okay, the government approach was guided by three consideration. अगर हम government approach की बात करें तो आप देखो three considerations were there. Three things were kept in mind. Firstly, the people of most princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. आप देखोगे कि फर्स्ट कंसिडरेशन जो थी गाइड, एक तरीके से आप देखो कि ये जो गवर्नमेंट के अप्रोच है उसका गाइड क्या बना, तीन चीजें जो थी उसको कंसिडर किया गया, तीन चीजें, और उसको रख के उस चीज को कंसिडर करके इट वाज यू नो द गवर्नमेंट वाज गाइडेड, गाइड गवर्नमेंट होती है उस डायरेक्शन में। पहली जो चीज थी वो आप देखते हो कि जो लोग थे, बहुत मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के, दे क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो उनको इंडियन यूनियन का पार्ट बनना था। ये एक पहली चीज थी। सेकेंडली आप देखते हो कि गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। द आइडिया वाज टू अकोमोडेट प्लुरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। तो अब सेकेंड जो आप एक तरीके से देखते हो कंसिडरेशन, जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो गाइडेड थी, दैट वाज दी कि गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड थी, फ्लेक्सिबल थी एक तरीके से ऑटोनॉमी देने में कुछ रीजन्स को, एंड द आइडिया वाज कि हम प्लुरैलिटी को अकोमोडेट करने के लिए रेडी हैं, whatever the case, and we will be flexible in approach in dealing with the demands of the region. So आपके जो demands है, we will try to look at those demands and we'll try to accommodate those demands. तो आपके जो demands होंगे हम उसको accommodate करने के लिए कोशिश करेंगे, and provided that you join the Indian Union. Now thirdly we will see that in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. Third thing that was majorly focused कि पार्टीशन, अभी आप देखते हो कि बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन हुआ था, आप देखते हो कि डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी हो रही थी, टेरिटरी डिमार्केटेड हो गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस टाइम पे इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। दैट मीन्स कि आपको टेरिटोरियल जो जितनी भी बाउंड्री वाले एरिया के रीजन के जितने भी प्रिंसिपल स्टेट्स एंड ऑल थे, उसको आपको अपनी इंडियन यूनियन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज देयर चांसेस कि आपके फिर से वो जो टेरिटरी जो डिमार्केशन हुए टेरिटरी के, दैट मे चेंज। तो आपको उस एरिया पे फोकस करना है कि आपको वो वाला रीजन जो है, बाउंड्री रीजन है, दैट रीजन यू हैव टू इंटीग्रेट एंड कंसोलिडेट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आपका बहुत ही सुप्रीम इम्पोर्टेंस का एक टॉपिक था, इशू था।
अब बिफोर 15th August 1947 आप देखोगे कि ये जो इनका पर्सुएशन का काम था कि इनको पर्सुएट करना प्रिंसली स्टेट्स को, वो इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अनाउंसमेंट भी पहले कर दी गई थी, सब एवरीवन न्यू अबाउट इट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द प्रिंसली स्टेट्स. So, peaceful negotiation had brought almost all states whose territory was contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. तो पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू आप देखोगे कि उन टेरिटरीज के, उन स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को जिनकी टेरिटरीज आप देखोगे कि बाउंड्री एरियाज में थी, मतलब पार्टीशन वाले रीजन्स में थी, जहाँ आपकी जो न्यू बाउंड्रीज फॉर्म हुई थी, वहां वाले जितने भी आपके स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू और इंटीग्रेट कर लिया गया था, इंडियन यूनियन में ले आया गया था. The rulers of most of these states signed a document called the Instrument of Accession. ये एक डॉक्यूमेंट साइन किया था उन्होंने, रूलर्स ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स ने, विच मेंट दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. जिसका मतलब था कि इनका स्टेट जो है, इनका प्रिंसली, इनके जो प्रिंसली स्टेट है, वो उन्होंने अग्री कर दिया है दैट दे आर रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर proved more डिफिकल्ट दैन द रेस्ट. ये आप देखोगे इन चारों एरिया का जो एक्सेशन था, दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. थोड़ा डिफिकल्टी हुई इन रीजन्स को, मतलब आप एक तरीके से यूनाइट करने में इंडियन यूनियन में. द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिसाइट. तो यहाँ पे जूनागढ़ वाले रीजन में यू विल सी a plebiscite took place. That means the people voted here whether they want to join Pakistan or whether they want to join India. So plebiscite confirmed people's desire to join India. You will read about Kashmir in chapter 8. Kashmir का topic आपको chapter 8 में देखने के लिए मिलेगा. Here let us look at the cases of Hyderabad and Manipur. So in this chapter we will look at Hyderabad and Manipur. So let us look at the case of Hyderabad first. Hyderabad, okay. Let us begin with Hyderabad. Hyderabad, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. Now imagine Hyderabad, अगर आप मैप में देखते हो तो ये कैसा princely states उस टाइम पे रह गया था, because all other princely state they were united with India उस टाइम पे, but this princely state it was now entirely surrounded by Indian territory, and it was resisting itself, and it was not joining Indian Union. So some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. कुछ जो parts हैं आपके old हैदराबाद के, अभी आप देखोगे present day में महाराष्ट्र के parts हैं, कर्नाटक के parts हैं and आंध्र प्रदेश के parts हैं. This is because of the reorganization of the states. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम. जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने टाइटल, उनका जो टाइटल था दैट वाज निजाम, दैट वी यूज्ड टू कॉल, उनको कहा जाता था निजाम ऑफ हैदराबाद. एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. तो आप देखो कि काफी ज्यादा वेल्थ थी इनके पास. The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He wanted an independent status for Hyderabad. He did not want to join Indian Union. He entered into what called the standstill agreement with India in November 47 for a while, for a year, while negotiation with the Indian government were going on. तो आप देखते हो निजाम ऑफ हैदराबाद में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में एंटर किया इन्होंने इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर. उस टाइम पे आप देखते हो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनके नेगोशिएशन चल रहे थे. इन अ मीन टाइम यू विल सी अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट. यहाँ के लोग जो है उनका मूवमेंट जो है, पीपल्स मूवमेंट दैट बिगैन टू अराइज इन हैदराबाद अगेंस्ट द निजाम रूल गैदर्ड फोर्स. सो पीपल अरोज अगेंस्ट निजाम. पीजेंट्री आप देखोगे तेलंगाना रीजन में इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ Nizam's oppressive rule and rose against him. So here the peasants of Telangana region, they were oppressed by the Nizam and hence they rose against him. Women also who had seen the worst of this oppression joined the movement in large numbers. So now the people started revolting against him. Hyderabad town was nerve center of this movement. So आप देखोगे हैदराबाद टाउन एरिया जो था वो नर्व सेंटर बन गया था इस मूवमेंट का.
The communist and the Hyderabad Congress were in the front of the movement. कम्युनिस्ट जो आपके आइडियोलॉजी के वहां पे कम्युनिस्ट लोग थे, एंड द हैदराबाद कांग्रेस वाज आल्सो देयर. They also became they were also there, and they became the forefront of the movement. And then what was the reaction of the Nizam? The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as the Razakars on the people. So Razakars अगर आप देखो तो Razakars basically जो आपके निजाम थे, निजाम के खुद की पर्सनल मिलिट्री थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी. एंड these Razakars, they resisted the integration, sorry, integrate they were basically you can say they were resisting Hyderabad to join Indian Union. So they did not want Hyderabad to join Indian Union, and on the other hand, they also had plans to make Nizam exceed his princely state to Pakistan instead of India. So they were planning also like this. इनका ये भी प्लान था. और इंटीग्रेशन जो है हैदराबाद का डोमिनियन ऑफ इंडिया में, इंडियन यूनियन में, वो ये लोग नहीं चाह रहे थे. तो ये खुद की पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम की. The atrocities and communal nature of Razakars knew no bounds. So Razakars basically they were Muslims. You will see communal nature आपको देखने के लिए मिलेगा. They will be performing, sorry, they will be torturing the Hindus, and you can say that they murdered, maimed, raped, and looted, targeting particularly the non-Muslims. So they will be targeting the non-Muslims, Hindus, Sikhs, Christians, whatever the case may be. So you can say that this is the interpretation that we get here. But if you search through the net about the Razakars and what happened actually in Hyderabad at that time, you will find other things also. Okay, so I'm just telling, if you're interested in this event of full accession of Hyderabad state into Indian Union, so the central government had to order the army to tackle the situation. Then army was ordered to go into Hyderabad. So in September 1948, India Army moved in to control the Nizam forces. Indian Army को finally अब 1948 में निजाम के जो forces हैं उनको control करने के लिए enter करना पड़ा. After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrender कर देंगे निजाम. इसके बाद आप देखो कि हैदराबाद जो है यूनियन में फाइनली जो है एक्सेशन हो जाता है हैदराबाद का. दिस इज अ इवेंट ऑन विच देयर आर मेनी, यू कैन से, जो आपकी थ्योरीज हैं अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है फ्रॉम बोथ द साइड्स. रजाकार्स के साइड से भी आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट फ्रॉम द मिलिट्री साइड ऑल्सो, from the Indian Army side also, you can say there are sources and there are reports from different kinds of reports you can find on this event particularly if you go and search on the net. So you have a note over here about Sardar Vallabhbhai Patel. He was the leader of the freedom movement. He was Congress leader. He was a follower of Mahatma Gandhi, deputy prime minister, and he was the first home minister of independent India. He played an important role in the integration of princely states with India, member of important committees of the Constituent Assembly on fundamental rights, minorities, provincial constitution, etc. So we are done over here. Now we'll take up the topic Manipur. A few days before independence, the Maharaja, अब ना मणिपुर का हम टॉपिक देख लेते हैं. मणिपुर में एक्चुअली व्हाट हैपेंड देयर. इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले की बात है. महाराजा ऑफ मणिपुर जो है वो, हिज नेम वाज बोधा चंद्र सिंह. He signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. एक assurance ली कि जो internal autonomy है मणिपुर की वो maintained रहेगी. वो autonomy किंग के पास, महाराज के पास ही रहेगी. That means बोधचंद्र के पास ही रहेगी. Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948. And the state became a constitutional monarchy. तो आप देखोगे कि अंडर प्रेशर में, लोगों के प्रेशर में आके जो महाराज हैं उन्होंने इलेक्शंस करवाए जून 1948 में. एंड हेंस आफ्टर दैट आप देखते हो कि मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है.
So basically, in a constitutional monarchy, what happens is there is the monarch. Monarch will be there, but he will be, he will be exercising his power according to the constitution. Constitution में जो लिखा होगा उसके according वो अपनी powers को exercise करेगा. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. तो ये आप एक तरीके से इसको याद रखना, प्लीज ध्यान में रखना कि कौन सा रीजन था फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. Now, in the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, वहां पे आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे थे इस क्वेश्चन के ऊपर कि मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज करना है या नहीं. While the state Congress wanted the merger, जो आपकी स्टेट की कांग्रेस थी मणिपुर स्टेट की, वो मर्जर चाहती थी. Other political parties were opposed to this. जो बाकी की political parties थी, they did not want so. And the government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popular elected Legislative Assembly of Manipur. So you know that elections took place here and and a Legislative Assembly was elected. And here you see that the government of India ने एक्चुअली क्या किया कि प्रेशराइज किया डायरेक्टली महाराज को कि आप मर्जर अग्रीमेंट साइन कर दो. लोगों ने किसको इलेक्ट किया था? लोगों ने किया था लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट. दे वर दी वंस हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दे वर दी वंस, लेकिन इन्हीं लोगों को एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं एक तरीके से इस मैटर में इन्वॉल्व किया, मर्जर अग्रीमेंट वाले मैटर में. तो ये एक तरीके से आप देखो कि इनको इन्वॉल्व ना करना एक इशू क्रिएट करता है, लॉट ऑफ एंगर इशू, एंगर जो है इसकी वजह से आप देखते हो रिजेंटमेंट जो है वो सामने आता है फ्रॉम द साइड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. Now this caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt. तो आप देखते हो कि अभी भी देर आर सर्टेन इश्यूज विच आर बीइंग फेल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी आपको हर रीजन में, इनफैक्ट हर एक स्टेट में आपको कुछ ना कुछ इशू देखने के लिए मिलते हैं. सो दीज आर दी काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच अभी भी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो प्रॉब्लम्स मतलब फेस कर रहा है इनफैक्ट. So this is all for this lecture. In next lecture, we will be talking about reorganization of states. I hope you like this lecture. If you like this lecture, please do like this video and share it with your friends, and subscribe to our channel Humanities Adda. I'll be coming with more such lectures. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Keep studying.